इंग्लिश, who don't understand हिंदी। आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश समझते? हमारे पास दो ऑप्शन है, हिंदी एंड इंग्लिश। वी हैव टू ऑप्शंस, हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ मेनी ऑफ यू here only understand English, you don't understand Hindi at all? Can you please write me here who don't understand Hindi, understand only English? Let's say you're from Nepal, आप नेपाल से है तो आप हिंदी समझते हो तो ठीक है चलेगा। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल हिंदी नहीं समझते, मतलब सिर्फ इंग्लिश ही समझते, मुझे वो नंबर थोड़ा देखना है, तो मैं अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को करूँगा। प्लीज अगर थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे तो कि सर मैं बिल्कुल भी आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल। अगर कोई मुझे लिखता है सर आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी वर्ड्स, काइंडली अगर मुझे थोड़ा सा मदद करेंगे, आप सब मिलके मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। बोथ सर आई एम फ्रॉम नेपाल बट आई अंडरस्टैंड बोथ। सर मिक्स दोनों में प्लीज। ओके श्योर आई मिक्स, या बिकॉज इट विल बी मिक्स्ड। So things when it is mixed, many times maybe English people are not able to understand the mix. That's why mix the question. I'm going to mix both. I think most of you understand Hindi, English both, so I can mix it up. मिल बांट के बोल सकता हूँ, मिला मिला के बोल सकता हूँ। So yesterday was the topic that how we can penetrate in a larger size, in a larger depth. So anytime when we are counseling about disease, about health, about product, we should really focus on two things. That what is the reason for consuming this product, and what could be the reason for referring this product, and if you're referring this product, why people are going to consume this product. So when you're meeting a prospect, अब जब एक prospect को मिल रहे हैं, you're meeting a potential leader or a prospect or a new customer, two things you have to keep in mind and two things you have to show. So if you want to motivate him into business and motivate him to work forward with these products, two things you have to keep in consideration. One thing, आपको उसको क्लियर कराना है that why he should be consuming this product, क्यों वो इस प्रोडक्ट को यूज करे, एंड नंबर टू, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो क्यों रेफर करे। अगर ये दोनों चीज उसके लिए क्लियर हो गया तो आप सोचिए आउट ऑफ 10 people you prospect, 7 will show interest, high interest, and 5 will buy. That means out of 10 people, 7 will show high interest and 5 will buy. That's 50% maturity. That's very high ratio. बहुत high ratio. That's a 50% ratio in network marketing is really considered high. 20% is considered high. I'm talking about 50%. So this is one strategy I think we could be really using. That one very simple understanding to this strategy is that if any customer is with you, he could be a diseased customer, he could be just disorder customer, he could be a normal customer, he could be a potential leader. Why should somebody be consuming the product for himself, and why should he be referring the product? So now ये matter आपके कोर्ट में है, बोलते हैं ना ball is in your court now. So ball is now in your court. Now let's play it. So you imagine that I am a customer in front of you, Tathagata Chakraborty. Maybe I'm a known friend, unknown friend, दूर का रिश्तेदार, whatever. So we met together. Now, why I should be consuming this product is because of my personal need. I personally need it. Why I personally need it? Because you know how to prospect someone with the health. This is the risk factors I yesterday told you. ये risk factors है, इसके वजह से ये risk factors के वजह से disease increase किया है, hospitals increase किया है, लेकिन patient से वापस person नहीं बने. Very clear understanding that the risk factors towards a disease or towards organ damage increased a lot in the last 10 years. Hence, the number of people disease also increased a lot. The number of hospitals opening also increased a lot. The number of doctors working also increased a lot. The number of patients admitting in the hospital also increased a lot. But the number of patients cured decreased a lot. Last वाला equation समझ में आया दोस्तों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोलिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रिस्क फैक्टर्स मतलब जिस कारणों की वजह से बीमारी होता है, जैसे किडनी डैमेज, जिस कारणों की वजह से किडनी डैमेज हो रहा है, वो फैक्टर्स अब इंक्रीज किया है, प्रूव्ड। उस फैक्टर्स की वजह से किडनी डैमेज होता है, प्रूव्ड, बिकॉज इतने डायलिसिस हॉस्पिटल्स खुले, इतने सारे डॉक्टर्स आए, इतने ट्रीटमेंट है, ये सब प्रूव्ड। इतने सारे पेशेंट्स एडमिटेड हुए, उसका भी प्रूव्ड। लेकिन कितने पेशेंट्स फाइनली क्योर्ड हुए? Admitted, treated, and cured. These are three different words. Again, I'm telling you, these are completely three different words. Admitted, treated, and cured. Means admitted means जाके भर्ती हुआ हॉस्पिटल में. Treated मतलब उसका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ. Cured मतलब ठीक हुआ. भर्ती बहुत हुए, इलाज भी बहुत हुआ, बहुत सारा इलाज हुआ, लेकिन ठीक कितने हुए? How many of them got cured? Big question mark.
You can say the mega question mark. This is the striking point into any person's mind. अगर आप इस प्रोग्राम के बाद आपके सबसे करीबी लोगों को भी ये टॉपिक निकाल के बोलेंगे, nobody can deny it. You know, deny मतलब नहीं 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 ये बात गलत है, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं बोल सकता. Because everybody is seeing diabetes, dialysis, tumor, gastric, arthritis, infertility in front of their eyes. Either they are facing it or they are seeing it. And they are seeing or they are facing a lot of treatment. They're doing a lot of treatment, but there is actually no cure. They're not getting all right. वो लोग ठीक नहीं हो रहे. So nobody can argue with you. Nobody can deny you. नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं. नहीं आपका बात सही नहीं. आपके बात सच नहीं. ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है. It means very one simple thing is that if you can bring these points to anyone in front of you, at least they buy the product or not buy the product, it's secondary, but they will definitely tell that we all need this product, primary. You see, that means your customer's self-realization is there. I need this product. मुझे ये product चाहिए. मुझे really इस product का जरूरत है. हाँ, वो ये बात में तो बिल्कुल सहमत है आपसे. अब वो product खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो next secondary step में है. इस प्रोडक्ट को खरीद के खाना चाहिए. Customer should be convinced and customer should be telling this and realizing this. Then only customer will be buying and consuming it. Remember एक चीज को हमेशा याद रखिए, until and unless जब तक एक customer self realize and self understand नहीं करेगा या self feeling नहीं करेगा मुझे इस प्रोडक्ट को खरीद के really खाना चाहिए, खाते भी रहना चाहिए, तब तक उसका आपका जो next step है finally buying मतलब joining, पैसा देके खरीदना, वो नेक्स्ट स्टेप को नहीं करेगा जब तक वो फर्स्ट स्टेप में कन्विंस नहीं होता है. दिस इज वेयर द मैचिंग पॉइंट कम्स. सो वेयर डू वी फेल? अक्सर हम कहाँ पे फेल करते हैं? हम सेकंड स्टेप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. सेकंड स्टेप ही सबसे बड़ा मजेदार चीज है क्योंकि वहाँ पे इनकम होता है. आपने 6,000 का प्रोडक्ट बेचा तो एक ज्वाइनिंग आया, 10,000 का बेचा एक ज्वाइनिंग है, 50,000 का बेचा एक ज्वाइनिंग है, आपके वहाँ से इनकम आ रहे हैं. बिल्कुल सही सोच, इट्स बिल्कुल करेक्ट सोच यार. ऑफ कोर्स बिजनेस होगा तो इनकम आएगा, सेल्स होगा तो इनकम आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट जो सेकंड स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज के बाद ही सेकंड स्टेज आएगा. तो फर्स्ट स्टेज इज कस्टमर्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ फीलिंग दैट यस दिस प्रोडक्ट इज नीडेड फॉर मी, आई शुड बी यूजिंग इट. उसके बाद ही वो डिसीजन लेगा आई शुड बी बाइंग इट, आई शुड बी यूजिंग इट. ना मुझे इसको, मुझे ये बहुत जरूरत है, आई नीड इट, मुझे ये यूज करना चाहिए, आई नीड इट, मुझे यूज करना चाहिए. ये फीलिंग आने के बाद ही तो सोचेगा ठीक है मुझे खरीदना चाहिए. सो इट मीन्स व्हाट, जो चीज आप पहले फोकस कर रहे थे बाइंग एंड यूजिंग, उसको मैं थोड़ा उल्टा करके बोलता हूँ सेल्फ रियलाइजिंग एंड बाइंग, तो यूजिंग ऑटोमेटिक होगा. बिकॉज दैट बाइंग फैक्टर इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट. उसके अंदर फाइनेंशियल खरीदना है, लोगों पैसा खर्चा करना है. आदमी पॉकेट से पैसा नहीं निकालता है जब तक उसको ये फीलिंग नहीं होता है मुझे करना ही करना है. कोई हॉस्पिटल में जाइए, कोई दवा, कोई क्लिनिक में जाइए, तो डॉक्टर उसको इस तरीके से बोलता है कि उसको फीलिंग होता है मुझे करना ही करना चाहिए, या तो मरना चाहिए, या तो करना चाहिए या तो मरना चाहिए. दैट्स द फीलिंग many of us had when we went to hospitals. आप में से अभी भी कोई हॉस्पिटल गया होगा कुछ टाइम पहले या आपके जान पहचान कोई गया होगा तो ये फीलिंग है मुझे करना चाहिए या तो मरना चाहिए. इट मीन्स व्हाट, तब जाके डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी में 2 लाख खर्चा होगा, he will do. Go to dialysis 20,000 per week, he will do. Buy these medicines, imported medicines 10,000 per injection, he will do. Go and admit yourself in the ICU ward, he will do. तब जाके वो करता है. It means until and unless the patient or the customer will have a self-realization that I really need to do this, तब तक he will not do this. बात को समझ पा रहे हैं? मुझे ये करना चाहिए, मुझे रियली ये करना चाहिए, जब तक उसको ये फीलिंग नहीं आता है तब तक वो नहीं करता है. तो अक्सर हम कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो करे, वो तब करेगा जब उसको लगे कि मैं करूं. रिमेंबर दिस फैक्ट. मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें अक्सर लगता है कि वो करे, वो तब करेगा जब उसको फीलिंग ये आता है कि मैं करूं, दैट आई शुड डू दिस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस बिजनेस, ऑफ योर प्रोस्पेक्टिंग. बिकॉज आई टोल्ड मैं in the Telegram channel, I will put all this theme, risk factors, number of people increase, why the number of people increase. इतना लोग admitted हुए, इतना लोग कभी ठीक नहीं हुए. Admitted 100, ठीक एक भी नहीं हुआ. It's a proof that medical treatment करने के बाद लोग ठीक नहीं होते. So अगर ठीक नहीं हो रहा है, अगर मैं 10 साल से डायलिसिस चला रहा हूँ, 10 लाख दे चुका हूँ और मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, अरे मुझे ठीक तो होना है. तो आप अगर कोई मेरे लिए solution लेके आ रहे हैं with a very good explanation,
You bring a solution with a very good explanation, which is very understandable and realizable. Realizable, yes, ये सही है और मुझे साथ ये होना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं करूँगा. Then you will see कि आप only 20 मिनट्स बात करके भी एक 20 ईयर पुराना पेशेंट को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, just 20 मिनट्स. या तो बहुत टाइम होता है 20 डेज तक भी प्रोस्पेक्ट करने के बाद वो मैच्योर नहीं होता. मे बी 20 डेज यू आर प्रोस्पेक्टिंग बट स्टिल ही इज नॉट मैच्योरिंग, बट स्टिल इज नॉट बाइंग, ही इज नॉट जॉइनिंग. This happens because of lack of self realization. This is a very very important point, because tomorrow our session will be very very elaborate. Hindi में होगा, English में mix करके भी होगा. I will put on the Telegram certain post. मैंने आपको जो वादा किया, I will definitely put it that this pattern, risk factors, the proof that risk factors affect the organs. Number of people admitted, number of people cured, very less. Number of people admitted, very high. Number of people treated, very high. But number of people cured, very low. In fact, maybe zero also. Diabetes, let's say in India, out of every 100 people, 30 people are diabetic. They're using medicines for 10 years. Number of people left the medicines, maybe 1%. That means 99% is suffering from diabetes. They're having a treatment of diabetes, but they don't have a therapy, but not got a cure of diabetes. That's why दोस्तों एक बहुत important point है कि ये चीज को आप खुद realize करें. It's very very important point, because I told you that every day I would bring one disease, and that disease I will first put on Telegram. तो मुझे Telegram में वो ready कर रहा हूँ मैं डालने के लिए, क्योंकि मुझे perfectly डालना है उस चीज को, statistics, इसलिए मुझे time लग रहा है, शायद 1-2 दिन और time लगेगा. So when I start putting it, you first read it. जैसे मैंने इवनिंग को डाला तो उसको आप आराम से पढ़िए, नेक्स्ट दिन प्रोग्राम में आइए, इजीली समझ में आएगा. सो इट बिकम्स लाइक अ हैंडी, मतलब उसको आप कभी भी देख सकते हैं. यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन को सुन लिया, बस यू स्टार्ट ट्रांसमिटिंग सब जगह. जैसे कोरोना फैला ना, वैसे फैला दीजिए, तो आप देखेंगे लोग ऑटोमेटिकली, you know, yesterday we were talking about footfall, number of people coming in will be more, and number of people coming in more seriously will also be more. लोग ज्यादा आएंगे और ज्यादा सीरियसली आएंगे आपके साथ, क्योंकि टॉपिक सीरियस है और अंडरस्टैंडेबल है. याद रखिए, टॉपिक सीरियस भी होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए. बहुत टाइम में क्या होता है, टॉपिक बहुत सीरियस है बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो सीरियस टॉपिक उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझ नहीं आ रहा है. बट टॉपिक सीरियस भी होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए. देन क्या होता है, जो जिसको आप समझा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, वो टॉपिक सीरियस टॉपिक उसके लिए रियली सीरियस लगता है, बिकॉज उसको समझ में आ रहा है. व्हाट हैपेंस मेनी टाइम्स, कुछ बहुत सीरियस टॉपिक है बट उसको ऐसे समझाया जा रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे, तो सीरियस टॉपिक का सीरियसनेस को नहीं समझ पाता है. बट अगर सीरियस टॉपिक को समझा पाए तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट वाला को, ये तो बहुत सीरियस बात है यार, मुझे तो रियली अभी करना चाहिए, दिस विल हैपन. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस प्रोटोकॉल्स, इस टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ बिजनेस को रियली फॉलो करें. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो मैं एक वोटिंग लेता हूँ. चलिए, कल से या परसों से अगर शुरू किया मैंने डिजीज वाइज एंड रिस्क फैक्टर वाइज टाइप का. मुझे पता है इंग्लिश सेशन में पीपल कम लेस अमाउंट, बिकॉज एवरीथिंग हिंदी में तो हुआ था, इंग्लिश में हो रहा है. हाँ, करना पड़ता है इंग्लिश में, दिस इज अ प्रोटोकॉल, तो आई हैव टू डू, अंजान सर हैव टू डू और कंपनी आल्सो हैव टू डू. सो एक प्रोटोकॉल में आते हैं, वरना इंग्लिश वाले गुस्सा हो जाएंगे, अरे हमारे लिए नहीं कर रहे. सो वी फॉलो द, वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स. वी नो दैट अटेंडेंस विल बी लेस. दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर फ्रॉम टुमारो, ताकि न्यू चैप्टर हिसाब से शुरू करें. गिव मी अ वोटिंग, कौन सा वाला डिजीज का टॉपिक फर्स्ट सुनना चाहेंगे. ज्यादा जिसमें वोट आएगा वो टॉपिक में पहले चुनूंगा. Which topic of disease you want me to start first from tomorrow, day after tomorrow? कौन सा वाला टॉपिक? डायबिटीज, डायलिसिस, इनफर्टिलिटी, यूरिक एसिड, थायराइड, गैस्ट्रिक, कुछ भी आप लिखिए, जिसका जो विश हो लिखिए. ज्यादा जिसमें पोलिंग आएगा मैं वो चूज करूंगा, क्योंकि मुझे भी अकॉर्डिंगली तो रेडी करना है सीक्वेंस में. ये रेडी पहले करना है, वो रेडी दूसरा करना है. रेडी दिमाग में है बट उसको नोट में लगाना तो टाइम लगता है. दिमाग का चीज को नोट में रखते हैं ना, तो बहुत वर्ड्स को मैचिंग करके लाना पड़ता है. गैस्ट्रिक और बाकी एक ही, सिर्फ हरिचंद जी चाहते हैं और बाकी कोई नहीं चाहता है. डायबिटिक, ओके, और जो भी आपको लगता है, विच एवर यू वांट. डायबिटिक, डायबिटीज, ओके, डाइजेस्टिव एंड डायबिटिक है. नर्वस, विप्लव सर, ओके. डायबिटीज, आई गॉट अ लॉट ऑफ डायबिटीज. गैस्ट्रिक एंड डायबिटीज ही डोमिनेट कर रहा है. हर्निया, ओके, हर्निया थोड़ा बाद में आएगा बट आएगा जरूर. मुझे 1-2 बार पहले भी हर्निया बोला गया. आई विल ब्रिंग. डायबिटीज, ब्रेन, ब्रेन मतलब न्यूरो सिस्टम. व्हाई ऑकर्स फैलोपियन ट्यूब, मतलब ओके, दिस इज कम्स अंडर फीमेल. गायनेकोलॉजी, थायराइड, ओके, इट्स ओके, मैं गायनेकोलॉजी में ला सकता हूँ. बीपी, ओके. चलिए और थोड़ा दीजिए, मुझे भी थोड़ा समझना है कि कौन सा चीज आपको ज्यादा
प्रॉब्लम कर रहा है मार्केटिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, आई हैव टू ब्रिंग दैट फर्स्ट. देयर इज नो प्रॉब्लम. जो आपको डायबिटीज इज बर्निंग प्रॉब्लम सर, इनफर्टिलिटी सर, ओके ओके जगमोहन जी, और बस इतने. We are still 65 people, so I think 65 periods problems comes under gynecology, infertility. Okay, I think mostly diabetes आया है, उसके बाद digestive आया है, उसके बाद infertility and periods आया है. Okay, hernia I will put also, but वो सब topic है, main topic में, सब topic में maybe later I will definitely put. नहीं है therapy के बारे में knowledge नहीं है सर. ओके ठीक है, ओके ठीक है. Accordingly, so diabetes, risk factors, people number of increased, and what is the current treatment happening. Example आपको बोल रहा हूँ, उससे लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, और क्यों हमारे प्रोडक्ट से ठीक होंगे, और करेक्ट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपको ये चाहिए ना. ओके, हाउ टू गिव द प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. मैं कॉम्बिनेशन का नाम नहीं बोलूंगा, बट हाउ टू गिव द प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. ओके ठीक है. अपेंडिक्स एंड एंडोक्राइन, ओके. पीरियड प्रॉब्लम, ओके ठीक है. आई गॉट द मेजर टॉपिक्स. आई विल स्टार्ट फ्रॉम मे बी डे आफ्टर टुमारो. कल भी नहीं, शायद परसों से, बिकॉज इट्स इजी टू गिव अ ट्रेनिंग है. फटाक से मेरे को तो सब कुछ मतलब मेरे पास रेडी है, दिमाग में बोलना इजी है, बट उसको जब मैं एक राइटिंग में, फॉर्मुलेशन में, चैनल में डालते हो, जब 2000 लोग देखते हैं और करीब 20,000 लोगों तक पहुंचता है, मुझे बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करके लिखना पड़ता है. कुछ चीज बोल देना और कुछ चीज लिख के रखना, वो भी एक चैनल में डिफरेंट मैटर होता है. तो आई हैव टू रियली वॉच आउट वर्ड्स, शब्दों को देख देख के, ताकि कल मेडिकल इंडस्ट्री के लॉयर आके मेरे पास एक अटैक ना करे. आप बात समझ रहे हैं ना. तो मुझे सब कुछ देख के भी लिखना पड़ता है. अरे इसको देखो, ये मेडिकल इंडस्ट्री का पूरा बैंड बजा रहे हैं, तो आ जाएगा भाग भाग के मेरे पीछे. अरे इसने मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर बोल रहे हैं. बहुत सारी चीज सोच के लिखना पड़ता है. हाउ ऑडियंस प्रोडक्ट क्योर दिस प्लीज आल्सो सी. अमित सर, मैं ऑडियंस प्रोडक्ट कैसे क्योर करते हैं उस चैनल में नहीं लिख सकता, बट न्यूट्रोसिटिकल्स कैसे क्योर कर सकता है और करता है वो मैं लिखूंगा. मैं डायरेक्टली ऑडियंस प्रोडक्ट नहीं लिख सकता हूँ. मैंने ऑलरेडी, आप जानते हो, मेरा न्यूट्रल चैनल है. इट इज माय न्यूट्रल चैनल. सो मैं एकदम, आपको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली डाया केयर, ऑडियंस डाया केयर है, क्योर करते मैं नहीं लिख सकता हूँ. बट डायबिटिक न्यूट्रोसिटिकल्स इस तरीके से काम करता है और हेल्प करता है और ठीक करता है, वो तो मैं लिखूंगा. मैं डायरेक्टली ऑडियंस डाया केयर नहीं लिखूंगा. आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आपके साथ मेरा ये ऑलरेडी डील था आप सबके साथ कि दैट इज अ न्यूट्रल चैनल. मैं नेफ्रोफिट बोल के नहीं लिख सकता ऑडियंस नेफ्रोफिट, बट मैं नेफ्रो न्यूट्रोसिटिकल्स, किडनी के लिए न्यूट्रोसिटिकल्स विल हेल्प लाइक दिस, वर्क लाइक दिस, वो तो मैं लिखूंगा. दैट्स माय पार्ट, राइट. सो आई थिंक I will make it this way, deep. Okay, definitely. मतलब I will go for heart and all these things. तो चलिए, मैंने आज ऐसा सोचा, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया कि we didn't have a sharing. आज ऑडियंस कम है, तो मैंने सोचा करीब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, that मैंने कभी भी स्क्रीन में शेयरिंग में किसी को भी नहीं बुलाया. बहुत टाइम हो गया, क्योंकि क्राउड होता था, 1 2 5 को बुलाएंगे तो बाकी लोग नाराज होते थे, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया. तो चलिए, आप लोग पहले भी बहुत शेयरिंग में आते हैं, मैं स्क्रीन में भी देख सकता हूँ, पहले बहुत सारे लोग शेयरिंग में आते हैं. बहुत टाइम शेयरिंग नहीं होता है मेरे क्लास में, शायद ओबीएम में होता होगा, बट मेरे सेशन में नहीं होता है. तो ठीक है, चलिए, आज मैंने सोचा कि मैं शेयरिंग करूं. अभी तक बहुत क्लासेस किया हमने, बहुत सारी चीजें सीखे और अभी सीखने वाले हैं. आप लोग काम को, बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस माइनस करके आगे बढ़ रहे हैं. तो इतना दिन ट्रेनिंग हो रहा है, इतना दिन ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं. तो कौन मुझे अपने अपने प्रोग्रेस के बारे में बताना चाहेगा? प्रोग्रेस मतलब, व्हाट इज प्रोग्रेस ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोग्रेस को? मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको बोलते हैं आई एम प्रोग्रेसिंग. आई एम प्रोग्रेस मतलब मूविंग अहेड, है ना. आपने आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन से ही बाहर दूर में काम कर रहे हैं, अगर आपको आप लॉकडाउन या ऑफलाइन से कर रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं. आप ऑडियंस में प्रोग्रेस के बारे में कौन कौन शेयरिंग करना चाहेगा? मीटिंग्स हमारे इतने दिन हुए, ट्रेनिंग्स हुए मॉर्निंग को, उसके बाद जो प्रोग्रेस हो रहा है आपका, है ना, द प्रोग्रेस, उसके बारे में कौन कौन बात, तरक्की, आपके तरक्की के बारे में, तरक्की इन द सेंस बिजनेस का तरक्की, टोटली आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट का तरीके हो सकता है, आपके नॉलेज का तरक्की, आपकी पर्सनालिटी किस तरीका, आज आप स्किल्ड हैं, वो भी तरक्की में आते हैं. आपका स्किल बढ़ गया, तो मैं आज बोल सकता हूँ लोगों के सामने, मैं समझा सकता हूँ, मैं आज पेशेंट को काउंसलिंग कर सकता हूँ, मैं आज ट्रेनिंग दे सकता हूँ. मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए, वो भी तरक्की है. मेरा बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ गया, वो भी तरक्की. मेरा इनकम बढ़ गया, वो भी तरक्की है. अपने अलग अलग तरीके का तरक्की भी, सब तरक्की है, और सभी ऑडियंस रिलेटेड है. अगर आपका स्किल बढ़ा, आज अगर बिजनेस नहीं आ रहा 2 महीने बाद बढ़ाएगा, बिकॉज आपका स्किल बढ़ा है, मतलब ऑटोमेटिक एक दिन आप धमाका करेंगे. सो वो सब कुछ मैं तरक्की में ही ले रहा हूँ. इट कम्स अंडर द पैरामीटर ऑफ तरक्की, प्रोग्रेस. कौन मुझे स्क्रीन में आके शेयरिंग करना चाहेगा अपने तरक्की के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में? बहुत दिन नहीं हुआ, 2-3 महीने हो गया नहीं हुआ. आज ऑडियंस कम है, इंग्लिश सेशन है. हु वांट टू एक्चुअली हैव अ शेयरिंग?
about their progress with audience in the last 2-3 months. Who want to come? Otherwise I will select. अगर आप में से कोई भी नहीं बोलता है नहीं मैं नहीं तो मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ, थोड़ा जानना चाहता हूँ कौन आना चाहेगा। नो वन, कोई भी नहीं आना चाहेगा। मैं सर विजय कुमार यादव जी, चलिए जिसने पहले बोला उसको पहले चांस मिलेगा। विजय कुमार यादव। लगता है बाकी लोग क्या प्रोग्रेस नहीं हो रहा आप लोगों का, ये क्या हो रहा है, पीछे तो नहीं जा रहे। विजय कुमार जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। सर मेरे अंदर ये प्रोग्रेस आया है, स्टिल कंटिन्यूअसली इतना दिन प्रोग्राम को सुनने के बाद, और आपका जो भी डिजीज डिसऑर्डर टॉपिक्स, और मैं रिटन स्टेटमेंट भी है आपका, सारा चीज इतना डेवलप हुआ है जो अंदर से मैं अगर किसी को भी बोलूं किसी टॉपिक के ऊपर, तो अगला जो सुनने वाला है उसको ये रियलाइजेशन हो जो ना यहाँ से जो आईडी एंड पासवर्ड है इसका एक वैल्यू एडिड क्रिएशन हुआ है मेरे अंदर। अगर मैं इस चीज को और दूसरों तक ले जाऊं तो उन लोगों में भी ये विस्तार से इसका बेनिफिट होगा। अगर मैं आपके थ्रू एमबीबीएस एमडी के अंडर सुपरविजन में कुछ नॉलेज लिया हूँ, तो डेफिनेटली ये मुझे रियलाइज हो रहा है जो मैं एमबीबीएस एमडी नहीं हुआ हूँ लेकिन उस तक पहुँच गया हूँ, ये रियलाइजेशन है मेरे अंदर। और कॉन्फिडेंटली किसी भी टॉपिक को लेके कॉन्फिडेंटली किसी के सामने बोलने का जो नजरिया आया है वो आगे नहीं था। लॉकडाउन के आगे तो मुझे एक्चुअली मैं पजल था, क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी आपके अंडर में जो भी नॉलेज आया है, लार्जली ये मेरा इनर डेवलपमेंट हुआ है, जो मैं किसी को भी एटलीस्ट 1 to 1, 1 to 10, कहीं पे भी 1 to 100, 1 to 200, कहीं पे भी इजीली मैं खुद का जो ये है नॉलेज है उसको लार्जली मैं निकाल सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यस। और मेरे एबिलिटी को जो सुनने वाला है वो रियलाइज करके वो अपने अंदर उस एबिलिटी को डेवलप करना चाहेगा। ये सारा चीज आया है। और किस ऑर्गन बेस्ड किसी भी टॉपिक के ऊपर डीप एक्सप्लेनेशन इजीली मैं कर सकता हूँ, ये चीज आगे नहीं था। आगे तो मेरे पास नॉलेज नहीं था हार्ट का, आर्टरी वेन हाउ इट वर्क्स, ब्लॉकेज क्या है, ये सब चीज जीरो नॉलेज था। अभी मुझे ये रियलाइज होता है जो एमबीबीएस एमडी का मतलब एमबीबीएस एमडी का एक क्राइटेरिया जो लोगों में जाना चाहिए, वो चीज मेरे अंदर आया है और मैं उसको एक्सप्लोर करके स्प्रेड भी कर सकता हूँ, ये चीज वेरी गुड। इट्स अ बिग डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दैट्स व्हाई आज अगर आपका किसी का बिजनेस छोटा छोटा हो रहा है बट एक टाइम में बहुत धमाका करेगा, बिकॉज योर स्किल विल बी रिवॉर्डेड। आदमी को अपना स्किल से ही रिवॉर्ड मिलता है, राइट। तो मैं नेक्स्ट बुलाऊंगा, पहले मेरा भी चॉइस का एक बुलाऊंगा, फिर जो लोग लिखेंगे उनको बुलाऊंगा। इज देयर एनी लीफलेट और ब्रोशर विद ऑप्शन टू सच इंडिकेशन इंग्रेडिएंट्स एफिकेसी? ओके, अब्दुल रशीद सर को मैं बुलाना चाहूँगा। आप काफ़ी एक्टिवली में हमारे मेरे प्रोग्राम में रहते, सो अब्दुल रशीद सर आई विल वांट टू पुट, जिसको भी मैं लेके आता हूँ काइंडली वो म्यूट कर ले मेरा होने के बाद। विजय कुमार सर, कोई भी, अंजन सर कैन यू पुट अब्दुल रशीद जी अनम्यूट एंड पुट ऑन द स्क्रीन। अंजन सर थोड़ा हेल्प करें, अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद आगे जी सर, जी अब्दुल सर, गुड मॉर्निंग सर। जी एक्चुअली क्या है सर, मैं सर
एक्चुअली क्या है सर, मैं लॉकडाउन से पहले से जिस दिन से जूम मीटिंग शुरू हुआ उस दिन से मैं जूम मीटिंग में बैठा है और मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। एक्चुअली मैं अंदर से इसको कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अंदर से मैं कर रहा हूँ और तकरीबन बहुत कुछ सीखा है सर। बहुत कुछ बोल रहा हूँ, लोगों के पास जाके शेयर भी कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अच्छा हुआ सर मेरे लिए, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। इस जूम मीटिंग में हम बैठकर बहुत कुछ सीखा है, यही मेरी बात है सर। मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरा टीम बहुत अच्छे से चल रहा है और जोरदार चल रहा है। ठीक है सर। Good, sir. Very good. Thank you so much, Abdul Rashid, sir. Thank you so much. Yeah, this is my Telegram channel. Yeah, thank you, Vivek ji, for posting. And Galaxy J5 Prime, Dr. Chakraborty, sir, we have official YouTube channel, so we can elaborate our knowledge regarding nutrition, so that we can elaborate. Okay, I don't have official YouTube channel yet, but YouTube में मेरा नाम डालेंगे तो 200 से ज़्यादा वीडियो मिलेगा। बहुत सारा चैनल ओनर्स पोस्ट करते हैं, लीडर्स पोस्ट करते हैं। Just put my name on YouTube. Just type my name, Dr. Tathagata Chakraborty. I think more than, at least at this moment, more than 100 videos are there. जो अलग अलग टॉपिक्स पे है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनफर्टिलिटी, कभी कोरोना वायरस के ऊपर कुछ मैंने स्पीक किया था, ऑडियंस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, लीडरशिप के ऊपर है, सो मेनी वीडियोस आर देयर। इफ यू कैन पुट माय नेम यू विल सी देयर आई हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ वीडियोस जहां जो मैंने लाइव किया है, यू नो दैट्स लाइव टोटली। अदर देन दैट आल्सो आई विल ओपन अ YouTube चैनल डेफिनेटली। बस इफ आई गुड होता है ना, कभी मोबाइल से पूरी तरह बहुत बढ़िया से नहीं हो पाता है, स्क्रीन बढ़िया नहीं आता है, आवाज बढ़िया नहीं आता है। Yes, maybe I will be arranging some studio tie up, and then I could be doing some small videos and putting on YouTube. मेरे टेलीग्राम में बहुत सारा है, but और भी मैं डेफिनेटली करूँगा YouTube में। इट्स अ गुड आइडिया, आई विल डू डेफिनेटली, ताकि आप सबको काम पे आ जाए, आप लोग इस चैनल को आगे लेके स्प्रेड कर सकें डेफिनेटली। सो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा गीता बरुआ से मैडम। गीता बरुआ को लेके आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, मुझे पहले तो एकदम ही बोल नहीं पाती, तो अंदर से अगर बहुत नॉलेज है लेकिन बाहर कुछ नहीं है, लेकिन बाहर नहीं बोल सकती, निकाल नहीं सकती थी। लेकिन आपके सहारे मैं ये बोलूंगी जो मुझे अभी बोल पा रही हूँ, मैं स्क्रीन में अभी आपके सामने बात कर पा रही हूँ, ये मुझे मतलब बहुत बड़ा ये लगता है। और सर मैं आज तक क्या सीखी सर, पहले जो भी हो मैं किसी के साथ अगर बिजनेस लेके भी जाती तो कंफ्यूजन होती थी, लेकिन अब मेरा बिजनेस हो या ना हो उसके सामने मैं पावरफुली बातें कर सकती हूँ सर। और एक बात है जो कि हम लोग एक डॉक्टरी का ये नहीं लिए हैं, MBBS ये नहीं है, हम लोग कोई डॉक्टरी का लाइन नहीं है, लेकिन किसी के साथ बैठ के मैं उनके साथ बैठ के मैं उनके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। ये पावर आया है सर, वो है उसका ये है, वो आपके कारण ही ये सब मतलब हम लोग को हो पाया है, एनर्जी आया है, एक पावर आया है सर। और इसके लिए मैं तो हमेशा शायद बोलती आ रही हूँ पहले से भी, जो सर आपके ये तो मैं लोगों के सामने जाकर फैक्टली बातें कर पाती हूँ। ऑर्गन्स के विषय बता पा, पहले तो ऑर्गन्स के विषय पता नहीं था। हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम आता है, लिवर का प्रॉब्लम आता है, किडनी का प्रॉब्लम आता है जानती थी सर, अभी उसके डिफिनेशन के बारे में जानती हूँ सर। आपने जैसे बताया डायलिसिस करने का क्या प्रोसेस होता है, सब बताया आपने। एक शुगर पेशेंट को किस तरह से उनको समझाना चाहिए, उसको किस तरह से बताना चाहिए सर, इसके बारे में उनके साथ जो भी हो आपके सुना हुआ, और खुद भी कुछ ये करके हम लोग जो बात करने का पावर जो आया है सर, वो तो मैं इस मीटिंग से आया है। मैं तो 100% बोलूंगी कि मुझे मीटिंग के द्वारा ही किसी के साथ बात करने का एक एक्स्ट्रा नॉलेज आया है सर। पहले अंदर में बहुत कुछ था, और मतलब क्वालिटी तो दो होता है ना, एक अंदर का होता है, एक बाहर का होता है सर। मेरा मतलब अंदर का था, बाहर का नहीं था, लेकिन अब आज के दिन में मेरा क्वालिटी बाहर से अंदर से बाहर आ रहा है सर। मैं इसके लिए बहुत हैप्पी हूँ सर। और ये बिजनेस तो बात की बात है, लेकिन बिजनेस तो करना ही है सर। इसके बावजूद भी मुझे एक एक्स्ट्रा मतलब सोसाइटी में उनको
प्रॉब्लम के बारे, उनको डिजीज के बारे मुझे बताने का एक पावर मिला है सर। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत मतलब ऑडियंस को, आपको, सभी लीडर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आप लोग इस तरह से एक ये रखे हम लोगों को हेल्प करने के लिए। बिजनेस तो अलग ही है, लेकिन एक बाहर आने के लिए, या एक मतलब जैसे लेडीज तो हमेशा हाउसवाइफ ही बोलती है, अपने आप को कमजोरी सोचती है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं होते, अंदर से पूरा स्ट्रांग है, लेकिन बाहर हम नहीं निकाल पाते उस स्ट्रांग को। लेकिन आप ये जो 11 बजे का 6 बजे का जो सेशन हो रहा है, उसके मतलब पावर से हम लोग बाहर बोलने का हमारा मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है सर। जब भूलते हैं कुछ, अगर भूल होता है तो आप लोग का सेशन पे याद कर लेती हूँ, तो मुझे पूरा पावर आ जाता है। मैं अपने बारे बोलूंगी सर कि मैं बहुत बहुत इसमें मुझे ये मिला है, और मैं बिजनेस को तो लेके जा ही रही हूँ। आशा करती हूँ बहुत जल्दी मैं अपना सक्सेस को हाथ ले लूंगी सर। इसलिए मैं आपको सेशन कभी भी नहीं छोड़ती, जितना हो सके मैं जैसे भी हूँ, गाड़ी में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, लेकिन आपका सेशन को मैं हमेशा कुछ भी करके थोड़ा समय निकाल कर मैं देख लेती हूँ, ताकि मुझे, मैं जैसे कहते हैं ना, मोबाइल को चार्ज देना पड़ता है, बैटरी जब डाउन हो गया तो उसको चार्ज दो तभी चलेगा। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो मैं आपका सेशन या 6 बजे का सेशन में आकर फिर से मतलब चार्ज हो जाती हूँ। कभी बोलने का पावर खत्म हो जाता है, लेकिन जब इस सेशन में आते हैं तो पावर फिर से बढ़ जाता है। तो हम लोग अपना बैटरी का, दिमाग का, अपना इंटेलिजेंस का सारा चार्ज इस सेशन से मिलता है सर। इतना ही बोलना चाहूँगा, और मैं चाहती हूँ ये सेशन को हमेशा बरकरार रखे। हम लोगों को जैसे हम लोग एक लेडी है, हम लोगों को कभी मतलब पावर रहता है, कभी हम लोग वीक हो जाते हैं किसी भी कारण से। तो इस सेशन में अगर हम लोग बैठे तो हमारा फिर वो जो पावर होता है वो फिर रिपीट हो जाता है। तो सर मैं चाहूंगी जो हमेशा इस सेशन को रखे, और इसी तरह से हम लोग को नॉलेज देते रहे, जो कि हम लोग और इस तरह से आप लोग को मतलब शेयर करने जो देते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बोली ना, पहले तो मुझे बात ही करने नहीं आता था, लेकिन आज मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। तो मतलब पहले तो मेरे को पूरा कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब मतलब थोड़ा धीरे धीरे अपने ये में आ रही हूँ, ताकि जी मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। So much, man. Very good. Your confidence has increased. That's a skill. Confidence बहुत बड़ा skill होता है। काफी टाइम इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम होने से कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होने से इन्फॉर्मेशन एकदम ट्रू लगता है, पावरफुल लगता है। एक्चुअली वेरी गुड शेयरिंग मैम। वेरी हैप्पी टू सी यू सो मच डेवलप्ड। बहुत खुशी लगा आपका ये डेवलपमेंट को रियली सामने से देख के। आई डू रिमेम्बर 2-3 महीने पहले भी आप शेयरिंग करते थे, तो कैसे करते थे, आज आपने कैसा किया। वेरी गुड, 5 स्टार मैम आपको। रबीना शाह को लाइए, अंजन सर। रबीना शाह, प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें जो शेयरिंग करना आना चाहते हैं। Yes, sir. Thank you, sir, for this opportunity. And आपको सर नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। अनजान सर, ऑडियंस ग्लोबल मार्केटिंग, आप लोग को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। एंड जितना भी यहाँ पर लीडर पार्टिसिपेंट सब है, सब लोगों को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सो आपको हार्टली थैंक यू बोलना चाहूंगी सर, जो आपने हमको यहाँ पर बोलने के लिए जो चांस दिए है सर। कुछ अपने दो बातें मतलब अपने में क्या इम्प्लीमेंट आया है और क्या है बोलकर जो आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया है सर। आई एम रियली सर, आई एम सो हैप्पी सर। सो पहले जो जितना भी सेशन सब हुआ था सर, या जब लॉकडाउन हुआ सर, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 कर एक करके सेशन सब दिए सर, या ये 200 डेज का। और ये सेशन भी आप इतने अच्छे से सर, ये सेशन तो मतलब उतना कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर भी वीकली 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करके, और ओबीएम में भी शाम को आ पाती हूँ। सो इससे मतलब मुझ में इतना डेवलपमेंट हुआ है सर कि जैसे पहले मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती थी। हाँ, मतलब डीजीपी हम मुझ में वो इम्प्लीमेंट आ चुका है सर। मतलब अभी किसी को भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस होता है कि प्लान क्या है, हाँ
स्ट्रांगली मैं बता सकती हूँ प्लान ऐसा है, ऐसा मतलब ये प्लान से आप सक्सेस हो सकते हैं बोलकर, और सिस्टम ऐसा है कंपनी का, ये सिस्टम में रहकर काम करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा बोलकर, ये बात भी मैं समझा सकती हूँ सर। और साथ साथ प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट वाई वेलनेस, वेलनेस रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में, और प्लस पॉइंट प्रोडक्ट में क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितने आइटम प्रोडक्ट है उसके बारे में, और उसके बेनिफिट के बारे में भी एक्सप्लेन कर पा रही हूँ सर थ्रू आप द्वारा सर, आपके ट्रेनिंग मीटिंग के द्वारा प्रोडक्ट के बारे में सर। सो फिर इतना ओबीएम में प्लान सिस्टम के बारे में अनजान सर, रंजीत सर, मनोज कुमार सर भी देते हैं, हाँ उनसे भी बहुत नॉलेज ले पाती हूँ सर। और अभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया है सर, मतलब कोई भी पूछता है ना ओके तुम ऑडियंस में काम करती हो ना, यस आई एम इन्वॉल्व इन ऑडियंस बोल देती हूँ, डायरेक्टली बोल देती हूँ। सो ओके क्या है इसका प्लान, क्या है इसका सिस्टम, क्या है, और ये प्रोडक्ट बोलते हैं ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है बोलते हैं, तो मैं बोल देती हूँ इसमें ये फॉर्मूला से ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका इम्पोर्टेंस ये है। हाँ क्लियरली जितना मतलब वो एक्सपेक्ट करना चाहता है उससे ज्यादा मतलब एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। सो अपने आप में इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट देख के सर बहुत आई एम हैप्पी सर, यस इतना हैप्पी हूँ सर। सो अभी हाँ मतलब डर नहीं लगता है, मतलब किसी को भी कोई भी ऑडियंस के बारे में जो बात करता है ना उसको मैं बोल देती हूँ हाँ ऑडियंस ये है, अगर तुम अपना फ्यूचर, अपना करियर और अपना प्रेजेंट को बनाना चाहते हो या बनाने चाहती हो तो तुम इसमें तुमको वेलकम है, तुम आ सकते हो, आ सकती हो। हाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा एनर्जी होना चाहिए, यस आई एम इन्वॉल्व इन ऑडियंस, यस आई कैन डू इट, यस MLM इज अ गुड एंड इतना बोलकर तुम आ सकती हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखा है, और तुमको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है उसका सपोर्ट मेरा रहेगा बोलकर बोलती हो। सो पहले मतलब इतना बात नहीं बोल पाती थी तो किसी को भी मतलब ज्वाइनिंग कैसे कराए बोलकर बहुत माइंड में स्ट्रेस होता था सर। पर अब भी सर अभी क्या हो रहा है एटलीस्ट ओके ज्वाइनिंग में नहीं आ पाए भी पर पेंडिंग में रहा हुआ है, अभी कंटिन्यू पेंडिंग में है, तो वो लोग बोल रहे हैं हाँ हम तुमसे ही जुड़ेंगे, तुमसे ही काम करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हो या बिजनेस के लिए तुमसे ही जुड़कर काम करेंगे। सो ऐसा रेस्पॉन्स आ रहा है सर। सो आई एम सो हैप्पी सर एंड थैंक यू ऑल और सर फॉर बस इतना ही शेयरिंग, मेरा 2 शब्द यही टुंगाना चाहती हूँ सर। थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड। इधर यस हो रहा है या तो पेंडिंग हो रहा है। वेरी अच्छा बोला। पेंडिंग अगर हो तो फॉलो अप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। शुड बी कीप ऑन फॉलो अप एंड फॉलो अप इन डिफरेंट टाइप। जो टेक्निक से आपने पहले बार ओपनिंग किया था, अगर वहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ और पेंडिंग में रह गया, नेक्स्ट टाइम जो फॉलो अप कर रहे थोड़ा और अपग्रेडेड फॉलो अप कीजिएगा। मतलब वही बात नहीं बोलिएगा, वही बात को थोड़ा और बेटर बोलिएगा। सो बिकॉज आपने 200 मॉड्यूल सुना होगा, कैसे लोगों को ट्रेनिंग देना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे प्रॉस्पेक्ट करना है। सो वो पेंडिंग में है। तो आप अगर जो भाषा, जो बात बोल के आपने पहली बार उसको अप्रोच किया था, जब आप उसको फॉलो अप करें उससे थोड़ा बेटर होना चाहिए, ताकि और उसको इंटरेस्ट लगे। लास्ट बार मैडम से मिला तो ये सुना, इस बार मिला तो और बेटर सुनने को मिला, और कुछ सीखने को मिला। लगता है जुड़ूंगा तो बहुत बढ़िया करने को मिलेगा, बहुत बड़ा पाने को भी मिलेगा। दिस इंप्रेशन विल बी क्रिएटेड। वेरी गुड, इसको फॉलो करें। और मैं जरूर ये बोलूंगा, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे मार्केटिंग सर लोगों का भी है, मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है। इसलिए मिस्टर अनजान सर के लिए एक सब लोग ताली दें। आवाज तो नहीं आएगा यहाँ पे, बट डेफिनेटली चैट में सब लोग एक चेयर अप एंड ताली दे सकते हैं। जितने भी लेडीज हैं सब उनको एक गुलाब दे और आदमी गुलाब का कांटा दे। Yes sir, thank you sir for this opportunity sir, thank you a lot sir. So because there's a very big contribution from our marketing team, a very big contribution. I mean constantly बेचारे लोग सुबह से लेकर रात तक वो लोग, उनका फोन ऑन रहता है, and each and every one को every customer को, every IB, every leader problem वो लोग सुनते हैं, solution करने का बेस्ट ट्राई करते हैं, solution करके भी देते हैं जो अपने हाथ में नहीं भी हाथ में है। So I think a very big cheer up and tear up for our अंजान सर। अंजान सर के लिए मुझे सबके तरफ से एक गुलाब तो जरूर होना चाहिए, है ना, गुलाब जरूर होना चाहिए, एक ताली जरूर होना चाहिए, एक चेयर अप जरूर अंजान सर के लिए सबके तरफ होना चाहिए। तो मैंने बोला फीमेल्स गुलाब दे सकता है, आदमी को कांटा, जो गुलाब के उसमें कांटा है वो भी देंगे तो भी फूल का पार्ट हुआ नहीं, ये मजाक है बिल्कुल। सब लोग डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि हमारे मार्केटिंग टीम के साथ कोऑपरेट करिए। जय श्री सरकार जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर अंजान सर चेयर अप। आप सब लोग अंजान सर को
टेर अपर इट्स नॉट इजी जो लोग करते हैं। अगर आप लोगों को बहुत लोगों को लग सकता है अरे इन लोगों का काम, ये लोग तो ये मार्केटिंग काम कर रहे हैं, इन लोगों का तो नौकरी है, बट सीरियसली आपको बोल रहा हूँ व्हाट दे आर डूइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। इवन मेरे बस का भी नहीं है। मेरे पास अगर दिन में 5 फोन आ जाए तो छठवां फोन जो आएगा वो गाली खाने वाला है। वो श्योरली कोई भी टॉप लीडर हो या 1D हो, बट द वे दे आर हैंडलिंग पीपल, हैंडलिंग एवरीवन, ये एकदम बहुत ही बढ़िया बात है। इट्स अचीवमेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, किसी का सर प्रोडक्ट नहीं मिला वो कंप्लेन आता है, सर मेरा कुकवेयर में खाना टेस्टी नहीं बना वो भी कंप्लेन आता है, मेरा खाना ज्यादा पक गया कुकवेयर में वो भी कंप्लेन आता है, सर मेरा पैन कार्ड का नंबर गलत गया वो भी कंप्लेन आता है, सर मेरा कोरियर नहीं पहुंचा वो भी कंप्लेन आता है, मेरा बीवी गलत जगह चढ़ा वो भी कंप्लेन आता है, सर मुझे थोड़ा मेरा एक प्रोस्पेक्ट को प्लीज आप 1-to-1 समझा दीजिए, प्लीज काइंडली मेरा 1-to-1 इस प्रोस्पेक्ट को समझा दीजिए, प्लीज फोन करके बोलिए। दे चारों हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सर करते हैं। इट्स नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट बात है। मतलब डेफिनेटली वो घर में भी बाजार में भी अगर बाजार करने गए घर के लिए तो उनको फोन आता है, राइट। मैं सुनता हूँ ना, मैं चारों के साथ हमेशा हम लोग बात करते रहते हैं। दे आर माई ऑल माई आई कैन से दे आर माई पार्टनर्स, दे नॉट ओनली माई कोलिग्स, दे आर माई फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। मैं उनके साथ बात करते रहता हूँ। सर बाजार में भी तो बेचारा कई फोन आ सकता है। सो आप सोच सकते हैं दे हैव गॉट अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग दिस टाइम and they have been a very good host, very good trainer, very good mentors also. So thank you so much also to our marketing department. आप सब लोग उनके साथ बहुत cooperate करें, जितना हो सके cooperate करें। High compliment, low complaint, ऐसा business strategy होना चाहिए। High compliment, low complaint। होता क्या है, marketing team हमेशा MLM कंपनी में marketing team ही सबसे ज्यादा मतलब पिटाई खाने वाला सिस्टम होता है। Compliment low, complaint ज्यादा। ऐसा मत कि चलन ऑडियंस मतलब उल्टा करते, कॉम्प्लीमेंट ज्यादा कंप्लेंट कम, राइट। थैंक यू सो मच। जो मैंने मेरे ख्याल से जो शेयरिंग करना था मेरी तरफ से मैंने किया है। Yes, definitely it's we thank all of you and be cooperative. It's a very difficult time. अभी भी समय डिफिकल्ट चल रहा है। सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे तो सब लोग चलेंगे। सब एक दूसरे का टांग खींचा-खींची करेंगे तो सब लोग रुक जाएंगे। तो अगर आपको एक डील दिया जाए, डील 1 सब लोग एक दूसरे के टांग खींचा-खींची करें, वहाँ पे रुक जाएंगे। और सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें तो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर आगे बढ़ते तो सब लोग एक दूसरे के साथ वी नीड टू कोऑपरेट। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, कोई भी जगह में 100% सब कुछ सेटिस्फैक्शन और करेक्ट नहीं हो सकता। ये मतलब ये कुदरत के नियम के खिलाफ हो गया, कुदरत के नियम के अगेंस्ट हो गया। अगर कोई भी ढूंढता है कि वो हमारा मार्केटिंग सर अंजन सर, मनोज सर, सोमनाथ सर, ये रंजीत सर या डॉक्टर सर या हमारा डायरेक्टर्स या हमारा मैनेजमेंट या मेरा अपलाइन, इसका ये एक चीज ये गलत है बट 5 सही है, 5 को फोकस करें। वो एक गलत हो ही सकता है यार, इंसान है, सिस्टम है, तो कुदरत से हम लोग पैदा हुए, कुदरत में भी तो गलती है। अगर कुदरत में गलती नहीं होता था तो सुनामी नहीं आता था, कोरोना नहीं आता था, वॉल्केनो नहीं आता था, आंधी नहीं आता था, बाढ़ नहीं आता था, तूफान नहीं आता था, हरिकेन नहीं आता था, टॉर्नेडो नहीं आता था, जो लाखों लोगों की जिंदगी 1 मिनट में बर्बाद करता है। कुदरत में भी तो कुछ तो गलती है। इस यूनिवर्स में गलती नहीं होगा तो सुनामी क्यों आया भाई, अर्थक्वेक क्यों आया भाई, वॉल्केनो क्यों आया, कि टॉर्पेडो हरिकेन आके क्यों लोगों का जिंदगी खराब करता है, बाढ़ बारिश आके क्यों खराब करता है, गर्मी में लोगों को सड़ा के मार क्यों देता है, ठंडी में लोगों को जमा के मार क्यों देता है। कुदरत में भी तो कुछ गलती है। हम लोग भी तो कुदरत का क्रिएशन है। We're also creation of what? Creation of this nature. We're the children of this nature. So we're also the species of this nature. So हर किसी के अंदर प्लस माइनस होता है। आप देखेंगे सक्सेसफुल पीपल एंड फेलियर पीपल का कभी भी कंपैरिजन पढ़िएगा, जिम रॉन का बुक पढ़िएगा, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में, सम हैबिट्स ऑफ पीपल इन एमएलएम। दे वांट टू, अगर एक अपलाइन है उसका और एक डाउनलाइन है, कंपनी है, कोलिग्स है, डाउनलाइन भी है, अपलाइन भी है, वो देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ द प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। अगर आपका एक डाउनलाइन है या अपलाइन है, आपके साथ मार्केटिंग वाला है, डॉक्टर है, ट्रेनर है, क्या बोलते हैं, कंपनी है, यू शुड evaluate and calculate the plus and minuses. अगर आप एक आदमी के साथ डिसाइड किया काम करने के लिए तो आपने उसका प्लस एंड माइनस को अच्छे से समझे, ऑब्जर्व कीजिए। उसके पास 5 माइनस है लेकिन 25 प्लस है, तो 25 माइनस 5 प्लस 20 होता है। हाँ, उसके पास 25 माइनस है 5 प्लस है तो माइनस 20 होता है। यस, यू कैन लीव। आपके लिए वो लगता है उसका माइनस है कुछ ज्यादा है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, छोड़ दो। बट उसके 5 माइनस से 25 प्लस है तो प्लस 20 होता है। प्लस 20 माइनस 5 इज प्लस 20, प्लस 25 माइनस 5 इज प्लस 20। बट हाँ, माइनस 25 प्लस 5 इज माइनस 20, तो आप मत हाथ डालो, यू इवेल्युएट इट। 10 बढ़िया पॉइंट है और 2 थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, उस प्रॉब्लमेटिक पॉइंट को ओवरलुक करके उस 10 पॉइंट को फोकस कीजिए। मतलब 80% तो आपके लिए पॉजिटिव है ना, बिकॉज
परफेक्शन ढूंढना माने एकदम परफेक्शन ढूंढना एक डिजीज है। आपको बोलता हूँ सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिकल, साइक्रेटिक एंड साइकोलॉजिकल डिजीज क्या है, यू कैन गूगल इट एंड मेडिकल वेबसाइट्स में जाकर देख सकते हैं। इन द सर्च ऑफ परफेक्शन you will never get satisfaction. One more time, in the search of perfection you will never get satisfaction. ये परफेक्ट होगा तो खुश होगा, परफेक्ट कभी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे कौन दावा के साथ बोल सकता है कि वो परफेक्ट है? मैं तो नहीं। आप में से कोई एनीवन हियर बोल सकते हैं सर आई एम परफेक्ट गर्ल, आई एम परफेक्ट गर्ल? मैं तो हुई नहीं, मोस्ट इम्परफेक्ट हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ। आप में से कौन दावा के साथ बोल सकते हैं मैं पूरा परफेक्ट हूँ? एनीवन? मैं तो सामने से आपको बोल रहा हूँ वेरी इम्परफेक्ट। मैं बैड हूँ, गुड हूँ पता नहीं, बट परफेक्ट नहीं हूँ। आप में से कोई परफेक्ट नहीं है ना? तो अगर हम परफेक्ट नहीं है, दूसरे में भी पूरा परफेक्शन ढूंढना नहीं चाहिए। अपने अंदर परफेक्शन पॉसिबल नहीं है तो दूसरे के अंदर भी तो परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, उस कंपनी के अंदर भी तो परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस प्लान के अंदर हो या प्रोडक्ट के अंदर या सिस्टम के अंदर या मार्केट के अंदर हो या आपके सर्कल के अंदर हो या आपके टीम के अंदर, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव द full perfection. In the search of perfection, you will never have satisfaction. That's a very big psychiatric disease. MLM में जो लोग फेल करते हैं या छोड़ के जाते हैं, मतलब सक्सेस नहीं हो पाते इनडायरेक्टली, उनके अंदर ये बीमारी चलता है। दे आर सर्चिंग फॉर परफेक्शन। 15 साल में परफेक्शन नहीं मिला, उम्र भी चला गया, एनर्जी भी चला गया, मान भी गया, इज्जत भी गया, पैसा भी गया, टीम भी गया, लोग भी गए, रिलेशन भी गया, परफेक्शन नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लास्ट में सक्सेस कभी नहीं मिला। यू शुड सी द गुड्स एंड बैड। 10 गुड पॉइंट है, 3 बैड पॉइंट है, तो 10 - 3 इज +7। इसको देखिए, 10 - 3 +7। हाँ, 10 बैड पॉइंट, 3 गुड पॉइंट, तो भाई वो -7 में है। ओके, तो आप छोड़ सकते हो, आप नहीं कर सकते, नहीं इन्वॉल्व हो सकते। डोंट सर्च फॉर परफेक्शन इन एनीवन। सर हमारा अनजान सर ने फोन नहीं उठाया, मनोज सर पता है फोन नहीं उठाते, रंजीत सर, सोमनाथ सर ना टाइम पे लोग रिप्लाई नहीं करते। आपको 10 बार रिप्लाई करे और एक बार अगर वो नहीं कर सकते, वो भी इंसान है, दे आल्सो ह्यूमन बीइंग। you should be complimenting them। ये हो के खुश होना चाहिए, कोई कंपनी का आदमी नहीं करते, बट इन्होंने 10 बार तो रिप्लाई करते हैं। बिजी होगा, पॉसिबल होगा, बिजी हो सकता है, उसको एक आपको नहीं हजारों को देखना होता है। So this is a very very important thing. We should not be complaining, we should be complimenting each other, supporting each other. ये एक बहुत बड़ा चीज है। Don't search for perfection. You will never get satisfaction. It will be end up in a very very bad frustration. लास्ट में क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, अरे यार हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। Of course, this will happen. बोलते ना बहुत सारे लोग कंपनीज ढूंढते, परफेक्ट कंपनी कौन सा, ये नहीं, ये करते 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 15 साल गया। 15 साल में 15 कंपनी गया छोड़ा, गया छोड़ा, गया छोड़ा, बिकॉज उसको परफेक्शन नहीं मिल रहा है। लास्ट में क्या हुआ, उसका सब कुछ चला गया, रेपुटेशन गया, पैसा गया, समय गया, इमेज गया, उसका एनर्जी गया, उसका इस इंडस्ट्री के ऊपर भी ट्रस्ट गया। लास्ट में क्या बोलता है, ये पूरा धोखेबाजी वाला इंडस्ट्री है, क्योंकि वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं, 100 में 100 मार्क्स नहीं होता है, पॉसिबली नहीं। बट 100 में अगर 70 भी कोई कंपनी दे रहा है, 100 में आपको लग रहा है मैं 100 में इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को, इस सिस्टम को 70 देता हूं, तो भी फर्स्ट डिवीजन आता है। हिंदुस्तान में, नेपाल में रूल में 60% अबव फर्स्ट डिवीजन आते हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट डिवीजन का कंपनी है, फर्स्ट डिवीजन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट डिवीजन का प्लान है, फर्स्ट डिवीजन का प्लान है, फर्स्ट डिवीजन का ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ओके, देन इज फर्स्ट डिवीजन। हाँ, आपको 100 में लग रहा है भाई 20 मार्क्स है तो फेल है, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, बिल्कुल भी हाथ मत डालिए उस इंसान के साथ, उस कंपनी के साथ मत डालिए। लेकिन अगर 10 में आपको 100 में 60 दे पा रहे हो, फर्स्ट डिवीजन, गो अहेड, फुल्ली गो अहेड। फर्स्ट डिवीजन मतलब इट्स गुड, फर्स्ट क्लास आ गया। सो मेरे तरफ से ये थोड़ा एक था आज टीचिंग। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ गुड डे। आई पास ओवर टू अंजान सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द सेशन। एंड अब पीछे तो नया, अभी सर ने जैसे आप सभी को बताया कि पीछे सर नया टॉपिक लेके पीछे शुरू करेंगे सेशन, शायद मंडे से शुरू करेंगे वो। तो आप लोग भी मतलब नए गेस्ट को या आपके डाउनलाइन से यहाँ पर पार्टिसिपेंट को बुलाइए, ताकि वो लोग पार्टिसिपेट करके कुछ सीख पाए यहाँ से। कुछ सीखने से क्या होगा, क्योंकि और एक चीज़ है कि डायरेक्टली में अगर आपको सक्सेस पाना है तो यहाँ लेट करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको जो जल्दी स्टार्ट करेगा वही सक्सेस उनको ही मिलेंगे। क्योंकि आप बहुत सारे, आपका बहुत बड़ा जो पैसा वाला है, जैसे कि सक्सेसफुल पर्सन है, पैसा वाला नहीं मैं बोलूँगा, मैं सक्सेसफुल पर्सन, जैसे कि आप सभी जानते हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल एक इन्वेस्टर है, वो जो है आपका, वो भी फर्स्ट उसने इन्वेस्ट किया था 11 साल उम्र में। 11 साल उम्र में उसने 3 शेयर्स खरीदा था घर का, कुछ मतलब लोहा का दरवाजा सरवाजा बेच के वो जो पैसा से खरीदा था।
तो 11 साल के उम्र में तो हम लोग को शेयर क्या वही मालूम नहीं था, वो शेयर खरीदा था। तो 17 में वो ऑलरेडी एक कंपनी जैसा ओपन करने के लिए ये हो गया था। और अगर दूसरे जगह पे देखिए, आप क्रिकेटर में देखिए तेंदुलकर, वो 16 इयर्स में इंडिया के लिए खेल रहा था। तो वैसे ही है, जब जितना आप जल्दी कोई भी चीज शुरू करेंगे तो उतना ही आप सक्सेस होने का चांस है। तो वही है, आपको जैसे कि ये ओबीएम सेशन या प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नए नए पार्टिसिपेंट को बुलाइए, मतलब नए गेस्ट को आपके टीम से, मेनली टीम मेंबर्स को बुलाइए जो अभी तक पार्टिसिपेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन लोग को बुलाइए ताकि वो लोग कुछ सीखे। क्योंकि आज भी देखे हैं आपने, विजय सर ने बोला है, गीता बरुआ मैम ने, फिर आपका रवीना सर ने, सभी ने, उन लोगों ने बोला कि कितना वो लोग सीख के यहाँ कितना उन लोग का फायदा हो रहा है। क्योंकि वो लोग कितना मतलब खुद ही एक मतलब सेल्फ ये हो गया है, डेवलप हो गया है वो लोग। अभी वो लोग मतलब किसी से बात करने से ये नहीं होता है। तो वो सब आपका बेनिफिट होगा, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि नए गेस्ट को लाने के लिए। और साथ में 6 बजे के ओबीएम में भी लाइए, ताकि आपका जो भी, अगर कोई किसी को बिजनेस प्लान या कंपनी का कोई प्रोफाइल के बारे में, अगर प्रोफाइल या प्रोमोटर्स के बारे में जानना हो, तो उसमें भी उनको वहाँ से नॉलेज मिल सकता है। तो इसी के साथ ही मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये सेशन को यहीं वाइंड अप करूँगा। फिर नेक्स्ट हम लोग 6 बजे जो हमारे हिंदी ओबीएम है उसमें मिलेंगे। तो तभी के लिए आप सभी को हैव ए नाइस डे। फिर शाम को 6 बजे मिलते हैं 6 PM ओबीएम में। तो हैव ए नाइस डे एंड बाय, थैंक यू।